السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کی ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس سے۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا، داد دینا چاہوں گا اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ ساتھ جیسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں، خاص طور پہ حسب حال کی ٹیم، جی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ Thank you very much, sir. یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے نا جنید صاحب، جب تک یہ پھیلے گی نہیں، ایجادات تو دھڑا دھڑ اللہ کے فضل سے اب ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایجادات کی تو اب بھرمار ہے، اس کی تشہیر بڑی ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یہ یقین ہے کہ جتنی محنت اور تندہی کے ساتھ میں اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں، اگر آپ 4-5 جو لوگ ہیں میرا ساتھ دیتے رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان سے دوبارہ نیوٹن، آئنسٹائن، ارشمیدس پیدا ہونے شروع ہو جائے۔ ارے واہ، خود ہی ہے نہیں جنید صاحب، میں ویری سیریس نوٹ، دیکھیں جو ایڈمٹ کرنے والی بات ہے وہ کھلے دل کے ساتھ ایڈمٹ کرنی چاہیے۔ فواد چودھری صاحب کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت میں کوئی پتہ نہیں مار کے مارے ہیں نہیں، لیکن کم از کم ہل جل ضرور نظر بالکل صحیح ہے، بالکل پہلی بار، ورنہ بالکل ایک مردہ سی وزارت ہوتی تھی۔ یہ سب کے آنے کے بعد کم از کم ہل جل شروع ہوئی۔ دیکھیں میں یہ عرض کرتا چلوں، آپ کی بات بڑی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نام ہی ہل جل کا ہے۔ آپ ہل جل کرتے رہیں جنید صاحب۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بکریاں چراتا ہوا بندہ اگر پتھروں کے ساتھ کھیلتا ہوا آگ ایجاد کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی ہل جل لی ہے۔ اچھا جیسے یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہل جل ہی سائنس ہے، حرکت ہی سائنس ہے، تو میں بالکل ایک سائنسی بنیادوں پہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہل جل ہی سائنس ہے تو کیا ایسے ایسے کرنے سے بجلی بن جائے گی؟ نہیں، آپ اس کو سیریس لیں، آپ کرتے رہیں ایسے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر بجلی نہیں بنے گی تو چلو تلیوں کے اوپر موری تو ہوگی نا، کچھ تو فائدہ ہوگا نا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اسی کا نام ہے۔ چودھری صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا تھا، میرے ذہن میں بڑی دیر سے پھنسا ہوا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ بندے کی طرف میرا 150 پھنسا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں سوال پھنسا ہے، کبھی آپ اپنا پہنچا سائیکل کے چین میں پھنسا لیتے ہیں۔ سر 100 مجبوریاں ہوندی ہیں کرانی ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا، وہ جس نے پتھر مار کے پتھر پہ آگ نکالی تھی وہ اتنا مشہور کیسے ہوا سر؟ تب تو میڈیا بھی نہیں تھا۔ کیا بات کرتے ہیں غوری صاحب، آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی دریافت ہے۔ آگ جو ہے وہ دیکھیں اس پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے، تو مشہوری تو خود ہی ہونی تھی۔ جیسے پہلے پتھر آگ لگاتا تھا، آج میڈیا آگ لگاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میڈیا پتھر کا ہو چکا ہے۔ تو صاحب ایک بات پوچھنی تھی، یہ ہر دفعہ سردیوں کے سیزن میں لنڈا کس سائنس کے تحت مہنگا ہوتا ہے؟ یار میں تو یہ لنڈے والا قصہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے فضل سے میں الیکٹرک سویٹر ایجاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ہی دفعہ سویٹر لیں، ہر سردیاں اس کو چارج کریں اور پہنیں۔ وہ سویٹر ارتھ ہو گیا، بندہ کمبے گا تو نہیں؟ نہیں، آپ کا بندوبست کر لیں گے، آپ کو ساتھ ایک ارتھ کی تار دے دیں گے۔ یار تم یہ سوال نہ کرو، تمہیں تو گھڑی کے سیل سے کرنٹ لگ جاتا ہے۔ ایک منٹ، میرا خیال ہے کہ اب وہ چیزیں ایجاد کریں جس سے عوام کا فائدہ ہو۔ عوام ہمارے بڑے پریشان ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیں جتنی سردی آئی ہے اس دفعہ، جنید صاحب اس سردی کے توڑ کے لیے میں نے 3-4 چیزیں سوچی۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ دسمبر اور جنوری جو ہے نا، اس کا نام جولائی اور جون رکھ دیا جائے۔ It is called scientific approach۔ اب دیکھیں اس میں اناؤنس کیوں نہیں کر رہا، یہ آپ سے میں نجی گفتگو کر رہا ہوں۔ اناؤنس اسے آفیشلی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پھر مولانا حضرات نے رٹا ڈال دیں۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ دسمبر کا نام آپ جولائی رکھ دیں اور جنوری کا نام جون رکھ دیں۔ اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی سویٹر کی یا یہ آگ کی یا کوئلوں کی تو مجھے آپ پکڑ لیجئے گا۔ جو دسمبر پہ ہونے والی شاعری ہے ساری، اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یار پھر یا شاعری کر لو تو یا پھر کر لو۔ حد ہو گئی ہے جنید صاحب، بڑا برا لگتا ہے ساری قوم بیچاری۔ چودھری صاحب، جس طرح آپ نے دسمبر جنوری کو جون جولائی کر دیا ہے، اس طرح چینی والے ڈبے پہ نمک لے کے
कीड़ियों को धोखा तो नहीं दिया जा सकता? गौरी साहब आप कैसी बात करते हैं यार, बोले बादशाह हैं आप। देखें ये जो चूंटी होती है ना कीड़ी, ये तो अनपढ़ औरत होती है। अच्छा जी, सच्ची कक्की कीड़ी भी अनपढ़ थी? वो भी अनपढ़ है, सिर्फ अंग्रेज होने की वजह से लगती नहीं। तो आपने कौन सा ककी कीड़ी के कंधे के ऊपर बस्ता लटकता देख लिया? वो भी अनपढ़ ही होती है यार। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम जो है वो इतनी भी जाहिल नहीं है, वो समझते हैं सारे, वो डील कर सकते हैं। अगर हम दिसंबर जनवरी को जून जुलाई कर लें या जुलाई जून कर लें, तो जाहिर है उल्टा करेंगे तो फिर महीने भी उल्टे हो जाएंगे। तो हम लोग उसे डील कर सकते हैं, इसकी घबराने वाली बात नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी अब कुछ भी कर सकती है। जैसे आपने देखा है कि जो चीन है उसने एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई है जिससे वो लाखों एकड़ रकबे के ऊपर वो मौसम को कंट्रोल कर सके। जहां चाहेगा बारिश बरसा सकेगा, जहां चाहेगा बर्फ आ जाएगी। मैं कहता हूँ जुनैद साहब इंडिया की जान निकली हुई है, उसको पता है कि चीन वालों ने हमारे सारे बादल खींच लेने, सारी ज़राअत का बेड़ा गर्क कर देगा चीन। और फिर आप चीन हमारा तो बरादर मुल्क है, हमारे तो भाइयों की तरह है, हम तो उनके साथ ये बड़ा फायदा उठा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का। आप देखें हुकूमत को बड़ी आसानियां हैं, किसी भी शहर में अगर एहतजाज हो हुकूमत के खिलाफ, आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाख रुपए के उनसे बादल लेके तो उस शहर पे छोड़ दें और फिर बारिश उस शहर में शुरू हो जाएगी, पानी खड़ा हो जाएगा, लोग एहतजाज छोड़ के कच्चे पहन के गलियों में नहाते फिरेंगे। तो मेरा मतलब है हम कंट्रोल कर सकते हैं हर चीज। जैसे वैसे भी हम जून जुलाई में चीन से कहा करेंगे थोड़ी सी बर्फ दे दो, जैसे फ्रिज वाले हमसा ऐसे नहीं बंदा करता, बर्फ का कोला दे देना। बिल्कुल, आप बर्फ लेके तो स्नो फॉलिंग कर सकते हैं। तो सब कुछ चाइनीज में बर्फबारी होगी, हमें समझ ही नहीं आनी। यार हम उसे उर्दू में डब करके बरसाएंगे ना, जैसे ये अर्तुगरुल गाजी को हम उर्दू में डब करके चला रहे हैं। घबराएं ना आप, इंशाल्लाह सारा बंदोबस्त मैं साइंस और टेक्नोलॉजी अपने डिपार्टमेंट के तहत करूंगा, उसको आप छोड़ दें। सर जी ये जो मसनूई बारिश हो रही है इसमें डड्डू गणाया गणाया करेंगे? हद हो गई है गौरी साहब, आपका क्या ख्याल है मसनूई बारिश में गूंगे डड्डू होते हैं? भाई डड्डू भी गणा गणा करेंगे, गंडोए भी उतने ही सुस्त चलेंगे। ये नहीं होगा कि मसनूई बारिश है तो उसमें गंडोया बिल्कुल ही बेचारा जा पड़ेगा, उतना को तेज चलेगा जितना आम बारिश में चलता। चौधरी साहब की स्टोरियां सुनान रहे हो, अवाम सारी परेशान हुई है, ये दसो कि गैस आएगी कि नहीं आएगी? पूरी कौम, वजीर आजम, काबीना, सब लोग गैस के हवाले से आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। नहीं जुनैद साहब, वो गैस की वजह नहीं है, वो मैंने जरा हेयर स्टाइल चेंज किया है। हेयर स्टाइल से याद आया बेटे, आपने भी हेयर स्टाइल बदला है जी, इसलिए ज्यादा फीनी लग रहे। नहीं तो बहू जी आपने हेयर स्टाइल क्यों बदला, टिकटॉक बनाने लगे हो? बेटे तुम्हें टिकटॉक का क्या पता है, इतना कमजोर है ये बच्चा, जब भी टिकटॉक बनाता है ना सिर्फ टिक बनती है, टॉक बनती नहीं है। अच्छा तो सारी बातें छोड़े, देखिए बुनियादी तौर पे आप कोई साइंटिस्ट तो है नहीं, सियासतदान है ना। आप तो साइंस पे सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग मजहब पे सियासत करते हैं। नहीं जुनैद साहब देखें, किसी भी महकमे के वजीर का टेक्नोक्रेट होना लाजमी नहीं है। देखिए ये जो वजारत होती है ये लीडरशिप है, और एक सियासतदान जैसी अच्छी लीडरशिप कर सकता है, मेरा ख्याल है टेक्नोक्रेट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने महकमे को यूज किया, इस्तेमाल किया उन लोगों को, वहां पे बड़ा बड़ा ब्रेन बैठा हुआ है, मैं तो ब्रेन ढूंढता हूँ। मैं सुबह नाश्ते में भी ब्रेन ढूंढता हूँ, और मैं चाचे लीफे के पास पहुंच जाता हूँ, बहुत अच्छा ब्रेन खिलाता है मुझे। तो पूछने में ये लगा था कि आप एक सियासतदान हैं और आपने पिछले दिनों एक सियासी बयान दागा है। आपने कहा है कि मरियम नवाज ने कभी किचन का रुख नहीं किया, बिलावल ने कभी नौकरी नहीं की, और दोनों अप्लाई कर रहे हैं वजीर आजम की सीट के लिए। तो किचन और नौकरी का वजारत उसमें से क्या ताल्लुक? मैं हैरान हुआ हूं कि आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी ये सवाल कर। देखिए किचन में भी लीडरशिप चाहिए होती है, आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहां भी आपको लीडरशिप नजर आती है। आप बेशक हेड हैं या किसी के मातहत हैं, मातहत हैं तो अपने लीडर को देख के आप कुछ सीख सकते हैं, खुद वहां पे लीडर हैं, हेड हैं, तो आपको लीडरशिप का तजर्बा होता है जी। इसलिए जुनैद साहब मैं ये कहूंगा कि मरियम कभी किचन में नहीं गई और बिलावल ने ना कभी कोई नौकरी किया ना कोई काम काज किया, तो ये वजीर आजम कैसे बन सकते हैं? तो सर इमरान खान साहब ने कौन सी बैरगों की दुकान की हुई है?
या इमरान खान साहब कौन सा बीको कंपनी में काम करते हैं? यहाँ वजीर आजम साहब बजरी घोलने वाली मशीन किराए पे देंदे रहे ने। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि मरियम कभी किचन में नहीं गई, तो इमरान खान साहब कौन सा बगैर अथरू के प्याज काट लेते हैं? यार आप लोग तो बौंगे दानिश्वर हैं, इसलिए आप मेरी बात नहीं समझेंगे। जुनैद साहब, लीडरशिप का तजुर्बा होना चाहिए वजीर आजम बनने। जो साहब लीडरशिप अपनी जगह, लेकिन जिस इजाद का इन्होंने जिक्र किया है ना, अगर वो आ जाए ना कि आपको ऐसी साइंसी इजाद दें कौम को कि बगैर आंसुओं के प्याज छीले जाए, तो यकीन करें कि आपके हल्के के अराइयों के वोट आपके पक्के हैं। जुनैद साहब, अब आप ये कह रहे हैं अगर इस तरह की कोई इजाद मैं कर दूंगा, बाद में अराइयों ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। क्योंकि अराई तो ये चाहते हैं कि जो फरिश्ता जान निकालने आए ना वो भी अराई हो। बहरहाल ये वैसे सजेशन अच्छी है, इस पे गौर किया जा सकता है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकल आए जो प्याज छीलने पे आंसू ना निकलने दे। चौधरी साहब प्याज ते ताजी चीरांगे जे गैस आएगी थे। एक हफ्ते तो मैं अंडा उबलने रखे है, वो नहीं उबल रहे हैं। मुर्गी का अंडा तो 5 मिनट में उबल जाता है, कहीं अपना अंडा तो नहीं रखा है। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, साथ नहीं तय करना है, कोई रेड लाइन लगानी है कि एनफ इज एनफ, बहुत हो गई। अब हमने अपना इमेज जो है वो ठीक करना है, या अपने बच्चों को एक साफ सुथरा पाकिस्तान देके जाना। हाँ जी। भाईजान, पिछले दिनों मुझे हमारे एक मोअज़्ज़ज़ व्यूअर ने ये लाहौर में जो उर्दू बाजार के करीब जो मछली मार्केट है जी, यहाँ की कुछ वीडियोस भेजी हैं। अब यकीन करें कि वो चंद वीडियोस जो है ना, वो सिर्फ आलियाने लाहौर नहीं, इंतजामिया नहीं, पूरे मतलब पूरी कौम के मुंह पे तमांचा है। वो इसलिए तमांचे तो काफी सारे हैं जो हमें नहीं पढ़ रहे। नहीं जो फील नहीं होते हैं तमांचे पढ़ पढ़ के, वो मुश्किलें इतनी पड़ी, वो आसान तो कोई नहीं हुई वैसे, लेकिन हम डीट होते चले गए। जी जी। तो वो वीडियो है भाईजान के, वो मछली मार्केट के मनाजर हैं। यकीन करें कि अगर वो कुछ देख ले ना, और मतलब मैं ऐसी वीडियोस दिखाने के हक में नहीं हूं कि आपका किसी एक चीज से दिल ही चढ़ जाए, लेकिन वहीं सड़क पे मछली पड़ी हुई है, गंदी सड़क पे, वहीं हर तरह का फुजला पड़ा हुआ है, जानवरों का पेशाब, गंदगी, गलाजत, और मतलब वो अगर सारी वीडियोस और तस्वीरें देखें तो आप चंद लम्हों से ज्यादा वो देख नहीं पाते। मैं सिर्फ एक जगह पे क्या मौकूफ, अब देखें कि लाहौर आजकल मतलब पिछले कई दिनों से गंदगी का मतलब गढ़ बन गया हुआ, जगह जगह पे कचरे के ढेर हैं, और जनाब उठाने की तरफ पता नहीं क्या कंपनी का वो रौला है कि ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। सड़कों के साथ साथ किनारों पे बेशुमार शाप पर गंद इकट्ठा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हम हर साल 2 साल 3 साल बाद ये रोना रोते हैं, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी पेशावर में, हर जगह। अब अनटिल और अनलेस मैं ये समझता हूँ कि हम लोग खुद ये तय नहीं करते कि हमने एक साफ सुथरी कौम बनना है, सफाई के हवाले से साफ सुथरी, वैसे भी सब अंदर से भी बाहर से भी साफ सुथरी कौम बनना है, लेकिन कम से कम जो नजर आने वाला गंद है उससे हमें छुटकारा हासिल करना है। जिन्हें टेढ़े हैं हम। मैंने इसी मछली मंडी में एक दफा मैं गया तो इसी तरह गंदी जगह पे मच्छी गंदी पड़ी हुई, मैंने कहा यार इसको तोश हो के रखो, कहता जी सारी जिंदगी नहांदी रही है, फिर इन्हों पानी च पा दिया। मैं कहा यार बहुत अच्छे। और उसके नीचे ना कोई बोरी बिछाई होती, ना कोई ऐसी बोरी तो चलो खैर है, मच्छी केड़ी आंडे देने होंगे, मगर ये है कि धो के तो रखो ना, साफ सुथरी तो रखो ना। गंदी मतलब जमीन पर रखी होती है मछली, हाँ जी। उसी जमीन पे जहाँ पे गलाजत पड़ी हुई, इर्द गिर्द गलाजत के ढेर है, और उन्हीं गलाजत के ढेरों में से एक ढेर मछली का लगा हुआ है। पहचानना मुश्किल है पहली नजर में कि मछली कौन सी है, गलाजत का ढेर कौन सा। नहीं तो ईमान से ये दिखा दो वीडियोस, अब मैं दिखा देता हूं ताकि ना लोग मच्छी खाएं, खुद ही इनको पीछे से पता चले मार्केट वालों। जी हाँ। हमें क्या जुल्फी खाता है शौक से मछली, हमें क्या? नहीं, हम सब मछली खाते हैं यार, और हमें क्या पता कि ये मछली किन किन मरलों से कहां से होके आती है। अच्छा यार, अब बात ये है कि क्या हमने सारी जिंदगी इसी तरह गुजारा करना है, या हमने तहिया करना है, तय करना है, कोई रेड लाइन लगानी है कि एनफ इज एनफ, बहुत हो गई। अब हमने अपना इमेज जो है वो ठीक करना है, या अपने
बच्चों को एक साफ सुथरा पाकिस्तान देके जाए। हाँ जी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा। कब निकलेंगे सितारे, कब होगी रोशनी? कभी नहीं होगी रोशनी, इस तरह कभी नहीं होगी। नहीं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, इस तरह तो कभी कह रहे नहीं कभी नहीं होगी। नहीं इस तरह, या तुम उठ के जाओगे तो होगी, या फिर कुछ करेंगे तो होगी। मैं सीधी बात करता अब झेले हो हूं। नहीं देखो, तो मैं कहा कि ये अब पार्ट टाइम सीरियस है, फुल टाइम कॉमेडियन है। मेरी बात सुनो यार, मैं सीरियस बात कर रहा हूं तो तुम करने नहीं देते। नहीं करें। मैं ये कह रहा हूं, देखो मेरी बात, नहीं आप जब बात तक- करें, उठाए तो ना बीच में से। यार मेरी बात तो नहीं उठा रहा, तशरीफ रख के। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं कि साफ हो जाए, ठीक है, बिल्कुल। साफ सुथरे हो जाए, बिल्कुल। अपने बच्चों को साफ सुथरा बनने और उनको मोहल्ले को, घर को, बाहर साफ सुथरा रहने की आदत डाले, साफ सुथरा बनाना। यार मेरी बात और सुनो। गंद पे एहतजाज करे। गंद पे जैसे ये तुम एहतजाज- मछली मार्केट दिखा रहे हो, हाँ जी। यार उधर इंसान जाते ही होंगे ना। हाँ, बिल्कुल। ये बाज मनाजर ऐसे हैं, खुदाई के मतलब माएं बहनें हमारी बाइक पे जा रही हैं उसी, और वो गिर रही हैं नीचे, उसी गलाजत में गिर रही हैं, वो देखी नहीं जाती। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मतलब उन माँ बाप को जरा भी एहसास नहीं होता जब वो बच्चे को या मुलाजिम को एक गंदगी का शॉप पर भर के या गंदगी की टोकरी दे के कहते हैं कि घर के बाहर फेंको जाए। हाँ। यार घर के बाहर आप कैसे हौसला कर लेते हैं ये हरकत करने की कि गलाजत है जो आपके घर के अंदर टोकरी में बंद है, आप कहते हैं कि इसको मोहल्ले में फैलाओ। फेंको, हाँ इसकी पता क्या सजा होनी चाहिए? मेरे ज़हन में ये आता है जी सर। कि जिसके घर के बाहर कूड़ा पड़ा हो या जो कूड़ा फेंकता हुआ पकड़ा जाए ना, हाँ जी। उसकी फोटो उतार के तो टीवी को दे। टीवी पे। अच्छा नहीं, अच्छा आप ये पता है क्या- जो बाहर कूड़ा फेंक। मैं इसी तरफ आ रहा था कि अगर हमने बंदे के पुत्र नहीं बनना इस हवाले से, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें सख्त सजाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सही। और सख्त सजाओं पर एहतजाज नहीं करना चाहिए। देखो ये वो क्या नाम था उसका, ली जैक्सन, उसकी एक किताब है डर्टी ओल्ड लंदन। लंदन के बाद जो आज मिसाल बनता है, लंदन बना देंगे, लंदन बना देंगे। वो कहता है कि 1890 की दहाई में वो कहता है कि लंदन इतना गंदा शहर था, इतना गंदा शहर था कि दरियाए टेम्स में सारे लंदन के गटर आके गिरा करते थे। सड़कों के किनारे आपको कचरे के ढेर नजर आया करते थे, और कहते हैं इंसानी फुजला इस तरह नजर आता था जैसे आपको लैट्रिनों में नजर आता है। ये सब कुछ उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट कहां से किया? स्टार्ट उन्होंने जुर्माने से ही किया था। उन्होंने 30 दिन की सजा और 5 पाउंड का जुर्माना रखा था, जो आज बढ़ते 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 150 पाउंड तक पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन उसमें फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि फलां कौन है और फलां कौन है और फलां का ताल्लुक किससे है। उन्होंने लंदन के मेयर को भी जुर्माना किया था, खुद लंदन के मेयर को जुर्माना कर दिया। सर मैं लंदन जाना चाहता हूँ। नहीं, लंदन से पूछ लेते हैं, लंदन इतना नरम दिल होगा, मान यार लेते तुझे लंदन को क्यों पूछ रहे? इधर से आप उसको चढ़ाए, उधर से आके बाहर रटा डाल ले लंदन, फिर और यार इधर से भाई, पूछोगे तो लंदन ने कहा मान हैं। ले। लंदन इतना मासूम नहीं है, इधर से चढ़ाएंगे लंदन और आगे हो जाएगा इसको देख के। लेकिन जुनैद साहब, हमारे बड़ों ने कहा कि सड़कों पर दरख्त लगाएं और हम वो हैं कि कूड़े के ढेर लगाए जा रहे हैं। हाँ, देखा वाह, कितने वाह। सियाना बच्चा सियानी बात करता जी है। इतनी ना बच्चे दा नेम दे पते रगा। की चाहते हो तुसी मैं तो लो आ दें? ना यार, हमारा नीम का दरख्त गंजा हो जाएगा। यार वैसे हमें देखना तो चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं दुनिया में। जी। इस वक्त कचरा पैदा करने वाले जो दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज हैं ना, उनमें हमारा शुमार होता है। हम यौमिया 1,16,000 टन कचरा पैदा करते हैं, जिनमें से निस्फ से ज्यादा बाकायदा ठिकाने नहीं, बाकायदा क्या ठिकाने ही नहीं लगाया जाता। जो बाकी मैं निस्फ कह रहा हूं वो भी प्रॉपर तरीके से ठिकाने नहीं लगाया जाता, वो भी कहीं ना कहीं डंप कर दिया जाता है, वो भी गलाजत का बायस ही बनता है, माहौलियाती आलूदगी फैलती है, वो छोड़ो। लेकिन जिन कचरे के ढेरों ने हमारी जिंदगियों को अजाब किया हुआ है, जो सड़कों पे, घरों के अंदर, खाली प्लॉटों में, ये इनका क्या किया हाँ जाए? जी। मतलब कभी आपको ये जुर्म का एहसास होता है कि खाली प्लॉट को जब हम कचरा कुंडी बना लेते हैं, हाँ। उसको डस्टबिन बना लेते हैं, हाँ जी। उस पर कोई एहतजाज नहीं करता, ना इस घर वाले, ना इस घर वाले, ना पीछे घर वाले, और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा प्रॉपर तरीके से अपना एक हक समझते हुए उसमें कूड़ा फेंकते जाते कचरा हैं। फेंक। तो यार कौन जुर्रत करे, कौन लड़ाइयां मोहल्ले में बनाए? होना तो ये चाहिए ना कि किसी महकमे के जिम्मे लगाएं, हाँ जी। उसका कोई इमरजेंसी नंबर हो, 151617 कोई कुछ भी, हो, हाँ।
اس پہ کوئی ملےدار اگر بتاتا ہے فون کر کے جی فلان جگہ کے اوپر پلاٹ ہے خالی, اس میں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں یا گلی میں پھینکتے ہیں, وہ آگے سرکاری لوگ اس سے پوچھیں, جرمانہ کریں, جس کے گھر کے آگے لگا ہوا ہے جرمانہ کریں. اپنا فرض ادا کرتے ہیں. ہم لاہور سے ڈی جی ایل ڈی اے صاحب سے درخواست سے اس کام کا آغاز کرتے ہیں. ہم ڈی جی ایل ڈی اے صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ تم نے جو تجویز دی ہے کہ جی کہ کوئی ایک ٹول فری نمبر دے دے جس پہ جب کوئی پلاٹ کم از کم رہائشی پلاٹ جو ہے وہ کوڑے کا ڈھیر میں تبدیل ہو رہا ہو تو فوری طور پہ ہمیں اطلاع دی جائے. ٹھیک ہے, وہ اس کے خلاف کاروائی کرے یا پھر وہ واسا کو بتائیں, کوئی ایسا سسٹم بیٹھ کے ڈیولپ کر لیں کہ یہ جو خالی پلاٹ جو کوڑے کے ڈھیروں میں تبدیل ہو رہے ہیں ان کو تو روکا جا سکے. بہترین طریقہ ہے جی, اگلے بتی کاٹ جاتے ہیں سب. دیکھو وہ اگر نہیں جرمانہ دیتا یا کوئی نخرہ کرتا ہے, اس کی بجلی بند کر دیتے, اس کی گیس بند کر دیتے. وہ جو کہتے تھے نا پرانے وقتوں میں حکا پانی بند کر دے, وہ ناطقہ بند کر دینا چاہیے ایسے لوگوں کا جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی وجہ سے محلے میں علاقے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں, گند پھیل رہا ہے اور اس کی سارے علاقے کی شکل خراب ہو رہی ہے. بازاروں میں ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ ہر بازار میں الیکشن ہوتے ہیں, انجمنیں بنی ہوتی ہیں, انجمن تاجران فلان یار آپ ان کو پابند کیوں نہیں کرتے بلکہ ان کو جرمانہ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح. اصل میں تو دیکھیں ان کی پھر ذمہ داری ہے کہ بازاروں کے اندر کے جو روڈز ہیں وہ جو صدر انجمن تاجران ہیں فلاں ہیں وہ پیسے بھی وصول کرتے ہیں, اپنے ممبران سے بھی پیسے لیتے ہیں, تو وہ ان کو سزا ہونی چاہیے پھر جنہوں نے اتنے بڑے بینر لگاتے ہیں الیکشن کے وقت اور لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اپنے انتخاب کے وقت, تو وہ یہ کچرا اٹھواتے ہوئے چند ہزار روپے خرچ کیوں نہیں کر سکتے جو اپنے انہوں نے ارکان کی جیب سے جمع کرنے ہوتے ہیں. ہاں جی دن سارے ہی دن دینے پہ کہ 100 دن چ ٹھیک ہو جائے گا, 3 مہینے چ ٹھیک ہو جائے گا, 50 دن چ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک پتہ نہیں سائیکل کرن دے, ملک تو ٹھیک نہیں ہون دے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بھائی جان ایک رکشا کرا لو, پکا ہی کافی دفعہ ہونا پڑا تھا انہوں نے کیا ہوں تھی اپنی گڈی چ لے گئے ہو تو پھر بھی تھی لے آنا, تھی کہڑا تھانے چ فلیاں چھلن ڈے ہوں ویلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. ناظرین آپ نے مکان بنانا ہو یا مکان کی مرمت کروانی ہو یا کوئی بھی عمارت تعمیر کروانا ہو, آپ کو بہت سے کرداروں سے واسطہ پڑتا ہے اور اس میں اہم ترین کردار ہوتا ہے مستری کا, جس کو ہم عام زبان میں راج بھی کہتے ہیں. جی آج ہمارے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک مکان بنانے والا مستری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیا حال ہے غفور؟ اللہ کا شکر ہے جناب. اچھا یار تم سے ہمیں کچھ شکایتیں ہیں, بلکہ ہر بندے کو شکایتیں ہیں, ذرا ان شکایتوں کا جواب دینا ہے. نہیں جب آپ نے مجھے ادھر کھڑا کیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ لوگوں کو مجھ سے کوئی شکایتیں ہیں. آپ ادھر اسی کھڑا کرتے ہیں, ظاہر ہے یہ تو کوئی گرم مامتے ہیں نہیں, بندہ ٹوٹی کھلے کھلو حکم نہیں ہے. پوچھنا تم سے یہ ہے بابا کہ اتنی لمبی فرد جرم ہے تم لوگوں پہ کہ کوئی بھی تم عمارت تعمیر کرتے ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سے کوئی خوش ہوا ہو. دیکھو جی پہلی گل تو یہ ہے کہ جب یہ مجھے لینے آئے ہیں تو انہوں نے بتایا جی کہ صحافی ہیں ایک, وہ آپ کو بلا رہے ہیں کام کاج کے حوالے سے. میں تو جناب صحافی کا سن کے نئی کانڈی خرید کے لایا ہوں کہ آپ کا کام اچھا ہو. وہی میں دیکھ رہا تھا بالکل نئی کانڈی ہے. میں تو سمجھا تھا پتہ نہیں تم گاجر کا حلوہ لگاتے ہیں. ادھر ایک کٹ بھی نہیں چلائی تواڈے واسطے, تواڈے لئی تسی چکے صاحب لوگ ہو تے تواڈے واسطے آئے ہیں کام کرنے واسطے, تو یہ تو ادھر آ کے پتا چلا نا جی کہ شکایتیں ہیں لوگوں کی. اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کب پتا چلتا ہے کہ تم لوگ اس قابل ہو گئے ہو؟ ایک مزدور جب چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو مستری یا راج ڈیکلیئر کر دیتا ہے اور بیڑا غرق بھی کر دیتا ہے گھر کا. نہیں جی سانو پہلے MSc سیمٹیالوجی کرنا پڑتا. جنید صاحب یہ کیڑا کو کالج سکول جے یا کون سی ڈگری لینی پڑتی ہے؟ ظاہر ہے کام سیکھنے کے لیے کسی کا شاگرد بیٹھ جاتے ہیں. میرا جو استاد تھا نا جی ماما رحیم, میں جن کا شاگرد ہوں, ان کے پاس میں نے 2 سال لگائے تھے. اچھا پورے پاکستان چ ایک مستری سا جے, ایک مستری ماما رحیم. واہ جی واہ, پورے پاکستان چ باقی اغوا ہو گئے. نہیں صاحب بہادر کہن دا مطلب یہ ہے کہ وہ دے نال دا اور کوئی نہیں سی. اچھا تو جنید صاحب 2 سال کام کیتا ہے
ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਆਏ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, मगर तुहाडी गल ठीक है कि नाड़ी भी विच आ बढ़ते हैं। इनफैक्ट ना गफूर, तुम लोगों पर इल्ज़ामात इतने तवील हैं, ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक दफ़ा कटहरे में खड़ा करने से तो तुमसे सारे सवाल हो भी नहीं सकते, तुम्हें 2-3 दफ़ा यहाँ लाना पड़ेगा। भाईजान एक रक्षा करा लो पक्का ही, काफी दफा होना पैना तुहानू उन्होंने कहा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫਲੀਆਂ ਛਿੱਲਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। वो हुक्म करो जनाब, हुक्म करो। सबसे बड़ा इल्जाम तो ये है कि तुम लोग दाम पूरी दिहाड़ी के लेते हो, काम धेले का नहीं करते। जी देखो साहब बहादुर, बदनीयत जो लोग होते हैं वो हर महकमे में होते हैं। क्यों जनाब, गलत तो नहीं किया? उधर जवाब दे भाई, अपना तेरा बूहा टुटा लोगों के मकान बनाए जान रहे। गुस्सा ना करो, तुसी भी अच्छे आदमी होगे। मेरा मतलब ये है कि सारे अच्छे कहीं भी नहीं होते, मगर अल्लाह ताला की रहमत से मैंने कभी बदनीति से काम नहीं किया। मगर लोग भी ना जी अब बहुत ही काले पड़ गए हुए हैं। लोग की कहते हैं सुबह मकान शुरू हो और रात को पूरा बन जाए, ऐसे नहीं होता। टाइम हर काम में लगता है। कल दी गल सुन लो, सुबह गया हूँ काम पे, भाई मजदूर अभी वो रेत सीमेंट घोल रहा है, तो मैं पास बैठा हुआ सिगरेट पी रहा हूँ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਤ ਘੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਗੂੰਦਣ ਲਾਵਾਂ, ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਤ ਘੁਲੇਗਾ, ਮਸਾਲਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ। और भाई साहब, अगर आप लोगों को दिहाड़ी पे काम दे दो ना, तो आप लोगों का तरीकेकार ही कुछ और होता है। यही काम अगर आपको ठेके पे दे दो तो फिर स्पीडें पकड़ लेते हैं आप। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ दिहाड़ी ते लांदे हो तो असां ते 8 घंटे की दिहाड़ी लानी है ना जी, तो अगर हमें ठेका दे देंगे तो फिर ये हमारी हिम्मत है, हमारी अपनी जिंदगी है ना जी। असी ओदा 12 घंटे दे विच काम मुकाइए, 18 घंटे भावें काम करिए, वो पैसे हमें फिर उस हिसाब से ही पड़ेंगे ना। दिहाड़ी पे भी अगर जुनैद साहब लगते हैं तो अगर ओवर टाइम लगाते हैं तो उसके पैसे बखरे होते हैं, क्योंकि हमने ओवर टाइम लगाया। गल ये हुई है कि नीयत तुहाडी अच्छी होनी चाहिए। एक नीयत अच्छी कर लवो तो सारा महकमा ठीक हो जाता है। भाई मैनू काहदे नाल मशवरे लई जांदा, मैं सिखाया तैनू काम। यार मैं तो 8 घंटे च तुसी 40 ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ 40 ਇੱਟਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਕਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 40 ਇੱਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣ ਦੇ 40 ਇੱਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ। ਉਹ बात ये है कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि नीयत अच्छी से काम करे। अब मुश्किल काम है अगर तो वो नहीं नजर आता कि ज्यादा हुआ है। सादा काम जेड़ा वो नजर आता है गाहकों को बड़ा हो गया है। जब तैयारी पे काम होता है तो उस वक्त जुनैद साहब टाइम लगता है, तैयारी टाइम मांगती है। टाइम जितना मर्जी लगा लो, आप पे इल्जाम ये भी है कि आप मटेरियल बहुत जाया करते हैं भाई जी। ओ काका डोरी अगे तेरे वर्गी शह ला के ना ते कंध साली करी दी है। पुत्र बड़ा तेरा लोहे दे लाठू वर्गा मुंह है, गल तो हुण मकान दे उत्ते सीमेंट रेत बजरी ते लगना है ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम मटीरियल जाया करें। मटीरियल किस लिए जाया करना है? ਉਂਜੀ जुनैद साहब जिथे रोड़ा चाहिए इट दे उत्ते तेसी मारो ते नाल मालक दी एवें जान निकलन दी। ओ यार इट इसे गल्लों बनी, इहनूं तोड़ भी सकदे हो। जिथे निका रोड़ा लगना है उत्थे इट तोड़नी पैनी है ना, ते लड़ पैंदे ने कि नवीं इट तोड़ छड्डी हो। की करिए, तोड़िए ना उहनूं ते की करिए, बर्फ च रख के उहनूं छोटा कर लईए। ये मटीरियल जाया भी करते हैं लोग, मगर असी नहीं करते। असी केड़ा आपको अल्लाह माफ करे कवरे पैना है, जिंदगी है किड्डी, ते जेड़ा मसाला थले डिग्गा है चुक के फिर कंध ते लाना हुंदा है। असी नहीं कदी ज्यादती नहीं कीती, असी ये समझने साडा है, साडे पैसे लगे ने। है ते इत्थे गल्लां कर रहे हो ना, काम ते भी अमल करया करो। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਟੀਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਡੀ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਮਲ ਬੇਟੇ। यही तो तेन दस रहे हैं कि अल्लाह के फजल से साहब बहादुर जी नीयत साफ करके और ईमानदारी से काम अगर तुम्हारी नीयत साफ हो ना तो तुम कभी भी एक काम अधूरा छोड़ के दूसरा काम ना पकड़ लो। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है। हाँ जी। चलो फिर सुनाओ सजा जो सुनानी।
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चांद पे वाकई जमीन वेख रही है और उन्हें 3 एकड़ लैके दे के ते कहा कि तेनू कसम ही 9वीं एनिवर्सरी तो पहले चंद ते टुर जावी। अच्छा जी, माशाल्लाह यहाँ सारे लोग ही शादीशुदा बैठे हुए हैं जी और अक्सर हमें अपनी शादी की एनिवर्सरी पे ये बात सुनने को मिलती है कि मेरी सहेली की एनिवर्सरी पे ना उसके खामद ने उसको टॉपस बना के दिए थे। आप फूल ही ले आते हैं। आपको तो याद हो तो तब है ना। कभी वैसे फूल दे के देखना तो फिर तुम्हें ज्यादा ताने सुनने पड़ेंगे। कभी अगर याद कर ही लिया था, मार ही लिया था तो कोई अच्छी चीज ले आता। ये कलियां फूल ये पहले ढेर लगे। बंदा छोटा जिहा सप ले आवे। ये लो। या वो कह रही थी कि मेरी सालगिरह आ रही है, कीमती तोहफा देना आपने। अच्छा, ये कीमती तोहफे के हवाले से हर औरत की ख्वाहिश होती है, तो बल्कि हर मर्द की भी ख्वाहिश होती है। मैं सच्ची बात है, अल्लाह को जान देनी है, मेरी बेगम ने कभी इस कीमती तोहफे का तकाजा नहीं, वो कहते बस मुस्कुरा के मेरी तरफ देख लो। नहीं, माशाल्लाह बड़ी खुशकिस्मत हैं आप, और कोशिश करें कि आप भी हमारी बहन जैसे हो। वो तो है ये अच्छी माशाल्लाह। तो बात ये है कि ये एनिवर्सरी पे या शादी के ऊपर तोहफे कुछ लोगों ने ऐसे दिए भी हैं अच्छा, जो सालों याद रहे हैं, सदियों याद रहे। वाह जी वाह। उन चंद तोहफों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। शाहजहां ने जो बेगम मुमताज को ताज महल का तोहफा दिया था, हाँ जी। वो तो अब बाकायदा तौर पे देखो ना जी, उसका शुमार दुनिया के अजायबात में होना चाहिए। तो उस वक्त उसकी मेरा ख्याल है कोई 3 करोड़ 20 लाख ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਾ DHA ਚ प्लाट ਹੁੰਦਾ है। उस वक्त 3 करोड़ 20 लाख रुपया लागत आई थी उस दौर में। अच्छा, चले उस दौर में किसी खातून ने अपने शौहर से कहा था ना कि देखें वो शाहजहां ने उसके लिए इतना ताजमहल बनवा दिया था। हाँ जी। उसने कहा कि ये ज़हन में रखे कि उसने अपनी 7वीं बीवी के लिए बनवाया था, मुझे भी इजाजत दो पहले। 7वीं करन दी नहीं तो वैसे अगो बीवी कहेगा चलो ठीक है कर लो, 7वीं तक तेरे कोल जो रोटी खान जो के पैसे रहा तो था गई। वो तो बादशाह सी भाजी। अच्छा, इसी तरह महीना पहले एक भारतीय रियासत जो है ना जी, राजस्थान, जी जी, वहां पे एक अजमेर से ताल्लुक रखने वाले ना जी एक कारोबारी शख्स धर्मेंद्र अनीजा उसका नाम है। अच्छा, उसने अपनी शादी की 8वीं सालगिरह पे ना जी, जी। अपनी बेगम को चांद के ऊपर 3 एकड़ जमीन खरीद कर दी है। तो देखो ना ये रहा उसने क्या तोहफा दिया। ना रजिस्ट्री, न प्लॉट, न नक्शा, न लेनी न देनी, न प्रॉपर्टी डीलर। जो मैं इस तरह अगले साल अपनी बीवी को मुरीख पे 4 प्लॉट ले दूंगा। भाई जी, मुरीख पे नहीं बेच रहा, चांद पे वाकई जमीन बेच रही है। और उन्हें 3 एकड़ लैके दे के ते कहा कि तेनू कुरान दी कसम ही 9वीं एनिवर्सरी तो पहले चंद ते टुर जावी। अजीजी भाईजान, चांद पर कैसे पता चलेगा उस मस्कीनी को कि मेरा कौन सा प्लाट है, कौन सी जमीन है मेरी? भाई जी, बकायदा नक्शा अगलों ने बना के तो रखा हुआ है, और जो बेच रहे हैं चांद पे जमीन, ये जो इसने लेके दिए ना जी, बकायदा 14.3 शमाली अर्जुल बल्द, 5.6 मशरकी तूलुल बल्द, हाँ जी, 377, 378 और 379 3 एकड़ 3 लंबर है उधर जो उसने बेगम को लेके दिए। 7 रजिस्ट्री पकड़ाई है, 7 कसम उठवाई है कि जाना जरूरी। वैसे हमें से गौरी कह सकता है अपनी बेगम को कि मैंने पूरा चांद तुम्हें दे दिया। क्या कहने, क्या ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹ ये सुन सकते हो है ना, मिठा मिठा फप और कौड़ा कौड़ा दूध दूजे की गल असी तो सुन ही नहीं सकते। अच्छा जी, ये जो धर्मेंद्र साहब है ना, रीजा साहब, जिन्होंने ये जो 3 एकड़ जमीन लेके दी है अपनी बीवी, जो उनकी बेगम का नाम है सपना, अच्छा। उसके नाम की खरीदी। अच्छा, और बेगम का कहना है कि ये तोहफा इतना हैरान कुन है कि मैं कई दफा सोचते हुए रो पड़ती हूँ
ये मेरे खामद ने कितनी मोहब्बत की है मुझसे, बाकायदा पैसे पे किए, वाह। ये बाकायदा बिक रही है चांद के ऊपर। प्लॉटिंग हो रही है चांद की। हाँ जी, बाकायदा एक बड़ा तवील अमल है, दरखास्त देनी पड़ती है और वहां पे हमने इस पे सेगमेंट भी किया था एक दफा, चांद पे प्लाटों की फरोख्त। इसने धर्मिंदर ने, अनीजा ने चंद अरसा पहले दरखास्त दी बाकायदा, उन्होंने इसकी हैसियत वगैरह का पता किया, फिर उसको वहां पे वो 3 एकड़ जमीन जो है वो अलाट की है। कोके ने भी कहा था मैंने प्लॉट लेना, मैंने कहा यार तू चंद ते पहला पैर ही रख देना, ते चंद ने इंज कहना सूरज नु कहना तेरा हाथ पाई में चला ही। इसी तरह रूस के एक बिजनेसमैन है रोमन एब्रा जी, उन्होंने ना जी अपनी बेगम को $14 मिलियन का एक मुजस्मा तोहफे पे दिया। अच्छा, हाँ जी, और साथ एक छोटा सा खत लिखा है कि जो गुस्सा चढ़े ना ते मुजस्मे नु चपेड़ा चपूड़ा मार दे। नाज़रीन, ये था आज का इस पे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि ऐसे लोगों को दोस्त बनाया करें जिनसे बात करते हुए आपको लफ्जों का चुनाव ना करना पड़े। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।